बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री मॉर्निंग पेपर और इवनिंग पेपर 2026 का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, आपको स्क्रीन पे एमसीक्यूज नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला एमसीक्यू है, इन अ रिडॉक्स रिएक्शन सब्सटेंस दैट इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर एक्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ सॉल्यूट इज मोर soluble in polar solvents than non-polar solvents, then the partition coefficient will be obviously greater than 1, option A is correct। उसके बाद है, which titration curve shows equivalence point above pH, obviously option B is correct, weak acid versus strong base। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, which compound is least soluble in water, obviously it's BSO4, option D is correct। क्वेश्चन नंबर 5, ligands form bonds with transition metals by donating lone pairs of electrons, option D is correct बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, which of the following is the type of geometrical isomerism। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, which compound is more stable due to resonance, obviously benzene will become more stable because of the resonance। question number 8, when chloroethane reacts with aqueous OH negative at low temperature, main product is obviously its ethanol। If the temperature during diazotization rises above 10 degrees, the diazonium salt, obviously option B is correct, decomposes करेगा rapidly। याद रखना है आपने, in oxidation reactants the side chain of alkyl benzene is converted into COOH group। ये आपको कर करके बेटा अंदाज़ा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, nitriles are prepared from halogen alkanes by reaction with KCN, this is an extreme or classical example of nucleophilic substitution reactions। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, if a polymer segment shows CH2-CH2-CH2-CH2, the monomer is obviously ethene, यानी इथीन से मिलकर ये जो है ना वो बना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, enzymes activity is affected by obviously temperature, the molecular ion peak gives information about the, option C is correct, molecular mass of the compound। question number 15, which compound will show maximum absorption in UV visible region 1, 3, 5 हेक्सेन, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोपानोन गिव्स हाउ मैनी NMK सिग्नल्स, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, अ कंपाउंड दैट स्ट्रांगली इंटरेक्ट्स विद द स्टेशनरी फेज विल मूव स्लोअर। ये थे बच्चों आपके मॉर्निंग पेपर के एमसीक्यूज। अब देखिएगा इवनिंग पेपर के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, Zn plus Cu2 positive gives us Zn2 positive plus Cu, what is being oxidized in given reaction, obviously zinc। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement is correct, ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट होगा, strong bases have high degree of ionization। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, the reactivity of group 2 elements increases down the group, option B is correct, zinc is not considered as a transition element because d orbitals are completely filled, option C is correct। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, an optically active compound is the one that rotates plane polarized light, option B is correct, the correct relative reactivity order is obviously ऑप्शन सी, एल्कीन इज ग्रेटर, फिर बेंजीन और फिर आती है बच्चों आपकी अल्केन की, ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोइथेन रिएक्ट्स विद KCN इज प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इज नाइट्रोजन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following is more acidic, obviously CH3CH COOH, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, which amine is more basic in aqueous solution, ऑप्शन ए इज करेक्ट, CH3NH2। which monomers undergo condensation polymerization, obviously option number D is correct, amino acids। which protein carries oxygen in the blood, hemoglobin, option A is correct। identify the m/2 value of CH3 CH2 CH2, इसकी 43 होती है बच्चों, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द बेस पीक
in a mass spectrum corresponds to the most stable ion. ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट होगा. उसके बाद है CH3 CH2OH has two different carbon environment in its spectrum. याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16. द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट इज रेफर्ड एज सॉल्वेंट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. लास्ट, कैटलिस्ट एक्सेलरेट्स रिएक्शंस बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. बच्चों ये थे आपके इवनिंग पेपर के एमसीक्यूज. अब देखिएगा मॉर्निंग पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा. सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है गिवन द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शंस. उसने आपको हाफ सेल रिएक्शंस दे दिए. आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शंस एंड कैलकुलेट ई नॉट ऑफ द सेल. ई नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट करनी है. कैसे होती है ई नॉट ऑफ द सेल? क्या होती है? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होती है. तो ये इक्वल टू होगा 0.77 माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा नेगेटिव ऑफ 0.76. तो ये प्लस हो जाएगा. तो 1.53 जो है ना वो आपके पास ई नॉट ऑफ दिस सेल होगा. राइट साइड में इसका जो क्लोज चॉइस के साथ क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली ब्रीफ कर देता हूँ. KPC इज इक्वल टू C ऑफ ईथर डिवाइडेड बाय C ऑफ वाटर. तो आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? राइट इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस. इसमें आप सबसे पहले SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों. उसके बाद जो आप इसका रिएक्शन होगा वो H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी 2E नेगेटिव जो है ना इसका होगा. इसके बाद क्लोज चॉइस के साथ जो इसका दूसरा क्वेश्चन है उसमें बताया गया है किस तरह से ये बफर सोल्यूशन को मेंटेन रखता है. pH जो है उसको किस तरह से मेंटेन रखता है. उसका आंसर है H2CO3 रिवर्सिबल रिएक्शन H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव. दूसरा जो था वो था HCO3 नेगेटिव, वो रिवर्सिबल रिएक्शन H पॉजिटिव प्लस CO3 नेगेटिव. ये जो सा है ये दोनों रिएक्शन pH बफर को कांस्टेंट रखते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा. टू बेसिस A एंड B हैव KB वैल्यूज ऑफ 1.8. ये उसने आपको वैल्यूज दे दी रिस्पेक्टिवली A की भी और B की भी. ठीक है, दो बेसिस हैं. आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग बेस, जस्टिफाई योर आंसर बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ द आयोनाइजेशन. इसमें याद रखिएगा बच्चों जिसकी भी KB की वैल्यू लार्जर होगी वो जो सा है वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा. अब इसका मतलब यह है कि B की वैल्यू जो सा है B जो आपका बेस था उसकी KB की वैल्यू लार्जर थी. इसका मतलब कि वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा. क्लोज चॉइस के साथ जो इसका दूसरा सवाल था वो था स्केच द टाइट्रेशन कर्व ऑफ अ वीक बेस विद द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द इक्वलेंस पॉइंट. इसका मैं जस्ट आपको हिंट दे देता हूँ. वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड कर्व आपने इसको ड्रॉ करना है. जो आपका इक्वलेंस पॉइंट होगा ना बच्चों वो आएगा आपका pH जब लेस देन 7 होगी. यह आपने बात याद रखी है. जस्ट अ हिंट. क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा. कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स. एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस. ऑब्वियसली ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज आपको पता है वो ज़्यादा होती हैं. न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता जाता है जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करती जाती है. क्लोज चॉइस के साथ जो इसका दूसरा सवाल था वो है राइट द आयोपैक नेम. IUPAC भी इसको कहते हैं. ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स A और B के. आपने ये नोमेनक्लेचर का बेसिकली क्लासिकल एग्जांपल है. इसके नाम आपने लिखने हैं. A का जो नोमेनक्लेचर होगा बच्चों वो होगा टेट्रा अमाइन ब्रोमो क्लोरो प्लेटिनम सल्फेट और जो B है वो होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफायरेट 2. क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों. क्लोज चॉइस के साथ इसका जो लेफ्ट साइड वाला पहला सवाल है वो है राइट एनी 3 यूजेस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स इन द इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड दी मेडिसिन्स. अलॉयज में यानी Mg जो मैग्नीशियम अलॉय फॉर एग्जांपल वो एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है और मेडिसिन में यूज़ होते हैं. MgOH होल ट्वाइस जो सा ये मेडिसिन में यूज़ होता है. सीमेंट में CaCO3 होगा और Mg जो सा वो अलॉय है वो एयरक्राफ्ट के अंदर यूज़ होते हैं. बहुत ही आसान सवाल है. क्लोज चॉइस के साथ जो इसका दूसरा सवाल था वो है राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ऑब्वियसली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप इसको कह सकते हैं. कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं
और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस होती हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ड्रॉ द सिस एंड द ट्रांस आइसोमर्स ऑफ 2 ब्यूटीन एंड आइडेंटिफाई द स्टेबल आइसोमर्स बिटवीन देम। बहुत ही आसान सवाल। ट्रांस वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, याद रखिएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो सी है ना ट्रांस के अंदर वो कम होती है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी जो सी है वो ज़्यादा होती है। ड्रॉ करना तो आई एम श्योर आपको आता होगा, बुक के अंदर भी मेंशन्ड है। उसके बाद था क्लोज चॉइस के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन। बहुत ही ईजी है, मैं आपको इसका भी हिंट दे देता हूँ। HNO3 प्लस H2SO4 गिव्स अस होगा NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और फिर आपके पास नाइट्रोबेंजीन ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, सेपरेट द कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग। तरतीब से आपको नाम नजर आ रहे होंगे। ए कायरल, बी और सी जोन्स हैं वो कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, याद रखें। उसके बाद क्लोज चॉइस के साथ जो इसका दूसरा सवाल है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स इन द गिवन रिएक्शंस। जो ए है उसमें आपका M डाई नाइट्रोबेंजीन आपको मिलेगा और दूसरे में आपको O एंड P पोजीशन के ऊपर क्लोरोटोलिन जो है ना वो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी कार्बन कैटाइंस, स्टेट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में याद रखिएगा सबसे पहले जो आपका स्टेबल होगा वो आपका है टर्शरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी, याद रखिएगा। फिर आपके पास जो है ना वो मिथाइल जो है वो अगर हो तो वो आ सकता है। इसकी रीज़न क्या है, टर्शरी कार्बन्स हैव मोर अल्काइल ग्रुप्स या डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी +1 इफेक्ट के साथ, या हाइपर जंक्शन जो इफेक्ट होता है ना वो बता रहा होता है। याद रखिएगा जितना हाइपर जंक्शन इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी जो है ना वो ज़्यादा होगी। क्लोज चॉइस के साथ जो इसका दूसरा सवाल है वो देखिएगा, अरेंज करना है आपको वाटर, फिनोल एंड एथेनॉल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस ऑर्डर। एसिडिटी के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले एथेनॉल, फिर उससे ज़्यादा जो यानी एथेनॉल, फिर लेस देन वाटर, फिर वाटर की फिर कम होगी फिनोल से। रीज़न क्या है, फिनोल रेजोनेंस जो है ना वो स्टेबलाइज्ड करती है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, राइट केमिकल इक्वेशंस टू प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम एनिलीन। इसका भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले एनिलीन डाइजोनियम साल्ट बनेगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी और फिर आपको जो है वो फिनोल मिल जाएगा। क्लोज चॉइस के साथ जो इसका दूसरा सवाल है वो है, वाई अमाइड्स डू नॉट रीडली एक्सेप्ट प्रोटॉन्स लाइक अमाइंस, गिव अ रीजन। 2 रीजंस है बच्चों इसकी। अमाइड्स जो उनसे होते हैं ना वो वीक बेस होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उनके जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर वो डी लोकलाइज्ड होते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर के अंदर कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं होता, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर बाय प्रोडक्ट जो होता है वो H2 होता है। ये बेसिक डिफरेंस था। उसके बाद है ब्रीफली एक्सप्लेन मोनोसक्राइड्स, डाइसक्राइड्स एंड दी पॉलीसक्राइड्स। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है मोनो का, डाई का और पॉलीसक्राइड्स का। वैसे मैं बताया तो मोनो ग्लूकोज, डाइसक्राइड्स जो है वो स्क्रोज होगा और पॉलीसक्राइड्स जो है ना वो स्टार्च होंगे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, आई एम श्योर कि ये आपको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर आयन पीक एंड बेस पीक इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इनमें भी जो बेसिक सा डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताया था। मॉलिक्यूलर आयन पीक के अंदर आपके पेरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि बेस पीक के अंदर आपकी हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है। यही है इसका बेसिक सा डिफरेंस। इसके बाद क्लोज चॉइस के साथ जो इसका दूसरा सवाल है, मैं आपको इसका जनरली बस आंसर कर देता हूँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ता। सबसे पहले आप देखिएगा जो मेंशन्ड है, अब्जॉर्प्शन बैंड के लिहाज से आपने फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। जो 3300 से 3500 पर सेंटीमीटर है वो है OH। उसके बाद 1700 से 1725 वाले C डबल बॉन्ड O और 150 से 1150 वाले जो हैं वो हैं CO। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, हाउ मेनी पीक्स आर एक्सपेक्टेड इन द NMR स्पेक्ट्रम ऑफ डाईमिथाइल ईथर, जस्टिफाई योर आंसर। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, आपको एक ही पीक मिलेगी बच्चों, क्योंकि जितने भी H हैं वो सेम है, याद रखिएगा। इसके बाद क्लोज चॉइस के साथ जो इसका दूसरा सवाल था, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू
क्रोमेटोग्राफी, सिंपल आपने क्रोमेटोग्राफी के अंदर मोबाइल फेस और दी RF वैल्यू को जो है ना वो एक्सप्लेन करना है। मोबाइल फेस तो आपको बताइए मूविंग सॉल्वेंट, जो आपका सॉल्वेंट होता है उसको आप मोबाइल फेस कहते हैं, और जो RF फैक्टर होता है वो डिस्टेंस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट होता है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन MCQ मॉर्निंग पेपर का, डिस्क्राइब एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉयज दैट मेक देम इम्पॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं और क्रोजन रेजिस्टेंट होते हैं। क्लोज चॉइस के साथ जो इसका दूसरा सवाल था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स बताने थे अलॉन्ग विद देयर इंपॉर्टेंस। ऑब्वियसली NPP नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जो है ना ये आपके होते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो ग्रोथ के लिए, फास्फोरस रूट्स के लिए और पोटाशियम जो है वो स्ट्रेंथ के लिए जो है वो यूज़ होता है। ये थे बच्चों आपके मॉर्निंग पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट के MCQs। अब देखिएगा आपको स्क्रीन पे लॉन्ग क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे, इनको भी आप देख लीजिए। सेक्शन C देखिएगा, बैलेंस द गिवन रिडॉक्स इक्वेशन अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आसान सवाल है। दूसरा जो है ट्रेंड आपने एक्सप्लेन करने थर्मल स्टेबिलिटी के ऑफ ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स के और नाइट्रेट्स के। दोनों सवाल अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके दोनों पार्ट बेसिकली डिफिकल्ट हैं, इसको भी आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। 5th क्वेश्चन, जस्टिफाई द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बाय ड्राइंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेसिस। ये भी आसान सवाल है। क्लोज चॉइस के साथ जो इसका दूसरा सवाल है वो है, स्टेट 2 फैक्टर्स दैट इफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस एंड द यूज ऑफ दीज फैक्टर्स टू एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ये भी आसान सवाल है। इसी तरह आप लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर अ वाइट प्रेसिपिटेशन इज या अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। ये भी अच्छा सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है। इसका क्लोज चॉइस के साथ जो दूसरा सवाल है ये वाला जो है ये डिफिकल्ट है। ये था बच्चों आपके पास मॉर्निंग पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन, या आप इसको टेंटेटिव सोल्यूशन भी कह सकते हैं। अब देखिएगा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा इवनिंग पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। गिवन द रिएक्शन आयरन प्लस लेड Pb2 पॉजिटिव गिव्स अस, उसने आपको इक्वेशन दे दी, डिटरमिन वेदर दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। इसका बहुत ही आसान, मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ। फिजिबल रिएक्शन तब पॉसिबल होता है जब E0 ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब इसमें E0 ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है। E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 0.3 माइनस ऑफ 0.44 करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 0.31। तो फिजिबल रिएक्शन हुआ ये। क्लोज चॉइस के साथ जो इसका दूसरा सवाल है वो है, द पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ अ सोल्यूट बिटवीन टू सॉल्वेंट इज 2.5 if the concentration in aqueous layer is 0.4 mole per decimeter cube. Calculate the concentration in the organic layer. बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल। आपने ऑर्गेनिक लेयर की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। K मल्टीप्लाई बाय C कर लीजिए, K 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 तो 1.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, स्टेट वेदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हैज़ अकर्ड इन दिस कन्वर्जन। नीचे उसने आपको दे दी NH3 से NO2। NH3 के अंदर N की अगर आप देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो होती है नेगेटिव ऑफ 3, जबकि NO2 नेगेटिव के अंदर देखते हैं तो वो होती है आपकी +3। सो बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडेशन जो है ना यहाँ पे हो रही है। क्लोज चॉइस के साथ जो दूसरा सवाल है वो है, ड्रॉ द टाइट्रेशन कर्व फॉर HCl टाइट्रेटेड विद NH3। इसको आपने कैसे करना है, हिंट ले लीजिए बच्चों। इसका जस्ट हिंट है वो ये है कि इनिशियल जो है ना वो आपकी pH लो होगी, इक्वलेंस जो pH है वो आपकी होगी <7, जबकि फाइनल pH जो है ना वो आपकी हाई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखते हैं, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट द एनोड एंड द कैथोड विद केमिकल इक्वेशंस व्हेन मोल्टन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। याद रखिएगा एनोड के ऊपर आपको 2Cl नेगेटिव गिव्स अ Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यानी क्लोरीन गैस जो है ना वो मिलेगी कैथोड के ऊपर, जबकि आपको सोडियम जो है ना वो मिलेगा। क्लोज चॉइस के साथ जो दूसरा सवाल था, कैलकुलेट द pH ऑफ एन एसिटिक एसिड स्लैश सोडियम एसिटेट बफर कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ईच कंपोनेंट। Ka उसने आपको वैल्यू दे दी। देखिएगा बहुत ही आसान है फार्मूला, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड, यानी इन दोनों की कंसंट्रेशन आपने यहाँ पे पुट करनी होती है। यहाँ पे उसने आपको बता दिया pK 4.74, जबकि कंसंट्रेशन सॉल्ट टू एसिड जो है वो 1 थी, तो लॉग ऑफ 1
plus 4.74, you will get the answer 4.74. Question number 4 देखें. State the type of ions formed by group 2 elements, mention their charge and compare their reactivity with that of group 1 elements. Question जो है ना ये रिपीट हुआ है मॉर्निंग के पेपर के साथ भी. ग्रुप 2 आइंस के ऊपर जो चार्ज होता है ऑब्वियसली +2 होता है और ग्रुप 1 के ऊपर +1 होता है. तो M2 पॉजिटिव जो है जेनेरिक चार्ज आ जाएगा. और याद रखिएगा ग्रुप 1 के एलिमेंट जो है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. उसी के साथ जो दूसरा सवाल है, प्रिडिक्ट द शेप, अप्रॉक्सीमेट बॉन्ड एंगल्स एंड दी कोऑर्डिनेशन नंबर, उसने आपको आगे बता दिया. शेप लीनियर होगी, बॉन्ड एंगल 180 होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इसका 2 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है कंपेयर विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस द रिएक्टिविटी ऑफ Li एंड Be विद ऑक्सीजन. बहुत ही आसान है, सिंपल. आपने क्या करना है, Li plus O2 gives us Li2Be plus O2 gives us 2BeO. Be जो है वो याद रखिएगा वो लेस रिएक्टिव होगा इसके अंदर. क्लोज चॉइस के साथ जो दूसरा सवाल है वो है वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स विथ D10 कन्फिग्रेशन आर यूजुअली कलरलेस. ये सवाल इसी से मिलता जुलता सवाल मॉर्निंग में भी आया था. D10 कन्फिग्रेशन जो है नो DD ट्रांजिशन, सो ये कलरलेस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों. गिवन द अल्कोहल प्रोडक्ट CH3CHOH CH3 रिड्यूस द हॉलो अल्केन स्टार्टिंग मटेरियल यूजिंग दी. बहुत ही आसान सवाल है ये भी और इसका आंसर है बेसिकली 2 ब्रोमोप्रोपेन. 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो इसका स्टार्टिंग मटेरियल है. उसके बाद अगर आप क्लोज चॉइस के साथ इसका दूसरा सवाल देखते हैं, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, व्हाई डज रिएक्शन अकर्स एट रूम टेम्परेचर अनलाइक बेंजीन. इन जनरल फिनॉल एक्टिवेटेड रिंग की वजह से ये पॉसिबल होता है. लिखना क्या है, फिनॉल प्लस Br2 गिव्स अस 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल जो है ना वो बनेगा. रूम टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल ये पॉसिबल है फिनॉल एक्टिवेटेड रिंग की वजह से. क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा. कंपेयर द एसिडिटीज ऑफ CH3COOH एंड नेक्स्ट उसने आपको दिया हुआ है एक्सप्लेन द डिफरेंस. 2 कंपाउंड उसने आपको दिए हुए और आपने उन दोनों का डिफरेंस भी जो है ना वो करना था. सेकंड वाला जो सा है वो स्ट्रॉन्गर है बिकॉज ऑफ दी -1 इफेक्ट की वजह से बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्गर है. उसके बाद क्लोज चॉइस के साथ जो दूसरा सवाल है वो है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फ्रॉम द फिनाइल अमाइन, व्हाई द रिएक्शन इज कैरिड आउट बिलो 1 डिग्री सेल्सियस. काफ़ी मुश्किल सवाल है ये भी. एनिलीन से डाइजोनियम साल्ट बनता है. उसके बाद C6H5NH2 प्लस NaNO2 मैं आपको सिर्फ ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्लस HCl गिव्स अस C6H5N2 प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O आपको मिलेगा. और ये जो रिएक्शन है बेसिकली लेस देन 5 डिग्रीज के ऊपर भी ये स्टेबल होता है, इसलिए ये 1 डिग्री से नीचे भी ये रिएक्शन पॉसिबल है. नेक्स्ट जो है वो भी बहुत ही मज़े का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा. ज़ीविट्रियन का ये सवाल है. ड्रॉ द ज़ीविट्रियोनिक फॉर्म ऑफ एन अमाइनो एसिड एंड लेबल द एसिडिक एंड द बेसिक साइड्स. ज़ीविट्रियन उसने आपको दे दिया. एसिडिक साइड जो होगी वो होगी COO नेगेटिव, जबकि बेसिक जो साइड होगी वो आपकी होगी NH3 पॉजिटिव. बच्चों बहुत ही मज़े का क्वेश्चन था ये. इसके बाद जो आपका क्लोज चॉइस के साथ दूसरा सवाल है वो है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द polymerization process of PVC from the vinyl chloride, state the type of the polymerization involved. Obviously addition polymerization जो है ना वो इन्वॉल्व होगी. बनेगा कैसे, सबसे पहले NC2 n टाइम्स ऑफ यानी CH2 डबल बॉन्ड CHCl गिव्स अस. आपने दोनों तरफ जो है ना वो ब्रैकेट डालनी है. ब्रैकेट के बाहर n राइट साइड के ऊपर, अंदर क्या आ जाएगा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl और फिर बॉन्ड आ जाएगा. इस तरह से आप पॉलीमराइजेशन को जो है वो शो कर देंगे. पार्ट नंबर 10 अगर आप देखते हैं तो वो है डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. अगेन क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुआ. एडिशन के अंदर नो बाय प्रोडक्ट, कंडेंसेशन के अंदर ऑब्वियसली बाय प्रोडक्ट होते हैं. बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन जो है मॉर्निंग के पेपर के अंदर भी आया था. इनलिस्ट करना है any 3 factors which affect enzymes activity, obviously temperature, pH and the substrate concentration. Question number 11 देखिएगा. classify lipids into simple, phospho and the derivative lipids. simple में fats, phospholipids में आपके पास
लिसिथिन भी आप इसको कह सकते हैं, LECITHIN, और डिराइव्ड को आप जो सा है वो स्टीरॉइड्स भी कह सकते हैं। इसके बाद इसका क्लोज चॉइस के साथ जो दूसरा सवाल है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन पीक, व्हाट इट्स स्टेट इट्स सिंबल एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस। इसी से मिलता जुलता सवाल भी मॉर्निंग पेपर के अंदर जो सा वो आया था। ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है वो पेरेंट मॉलिक्यूल, और इंपॉर्टेंस क्या है, मॉलिक्यूलर मास। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका मास स्पेक्ट्रम शोज एम पॉजिटिव पीक, उसने आपको बता दी M+1 पीक इज 5.5%। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बहुत ही आसान है। इसमें कैसे करते हैं, M+1 इज इक्वल टू 5.5%, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 5 होंगे। याद रखिएगा कैसे होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.1%। इसको आप स्प्लिट कर लें तो जो 5 नंबर आ रहा होगा वो आपको बता रहा होगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। क्लोज चॉइस के साथ जो दूसरा सवाल है, राइट प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन लिस्ट एनी वन एप्लीकेशन ऑफ द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। एप्लीकेशन क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, और डेफिनेशन जो सी है वो बहुत ईजी है, वो तो आपको पता ही है। इसके बाद जो सेकंड लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, व्हाई ड्यूटेरेटेड सॉल्वेंट्स आर रिक्वायर्ड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत ही आसान सवाल है ये, याद रखिएगा। ड्यूटेरेटेड सॉल्वेंट किस लिए यूज होते हैं, अवॉइड करते हैं प्रोटॉन सिग्नल इंटरफेरेंस को। क्लोज चॉइस के साथ जो इसका दूसरा सवाल था वो है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू क्रोमेटोग्राफी। सेम क्वेश्चन, स्टेशनरी फेज और सॉल्वेंट फ्रंट, इससे मिलता जुलता तो बल्कि एक MCQ भी आपका आया हुआ था। बहुत ही आसान है ये, इसको भी याद रख लीजिए। मिलता जुलता सवाल मॉर्निंग के पेपर के अंदर भी आया था। लास्ट है, व्हाट इज अ कैटलिस्ट, एक्सप्लेन इट्स एक्शंस विद अ जनरल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ये भी मॉर्निंग पेपर का क्वेश्चन है। व्हाट आर द पेस्टिसाइड्स, एनलिस्ट एनी टू ऑफ देयर नेगेटिव एस्पेक्ट्स। पॉजिटिव साइड्स अगर आप देखते हैं तो वैसे तो ये किल कर लेते हैं जी पेस्ट को। नेगेटिव अगर एस्पेक्ट देखते हैं तो ये टॉक्सिक होते हैं, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये कॉज करते हैं। बच्चों ये थे आपके इवनिंग पेपर के MCQs। सेक्शन C, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 ये आपको नजर आ रहे होंगे, आप इनको देख लें। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हैं वो मैं मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट साइड क्लोज चॉइस के साथ, उसके बाद 4 का भी राइट साइड वाला, स्टेट 2 फैक्टर्स दैट इफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमाइंस। उसके बाद आपका फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्वेश्चन नंबर 5 लेफ्ट साइड वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये आया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट जो थे ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही उसने आपको दे दिए। आई एम श्योर कि आपने ये पेपर बहुत अच्छे से किया होगा। ये था बच्चों आपके पास मॉर्निंग और इवनिंग पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन। इसी तरह मैं तमाम साइंस सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ। अब वो वीडियोस भी जाके ज़रूर देखें, मैंने मैथ्स की ऑलरेडी अपलोड कर दी। अगर आप ये वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कर दें। स्पेशली फॉर मैथ्स मैं लाइव आऊँगा, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन या जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लाइव आके भी सीख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है मैं ज़रूर आंसर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।